study is better rather than on the news which is spreading all around, so that you are not continuously in the same uh, bad mood, and you sometime you can have some entertainment kind of things, and just devote more time in your family and with your sisters and brothers, with your parents, and better to do some better to have some your hobby kind of things, and pass your time, and the rest of the time you can devote in studies. I am not putting you on you the much load of assignment and all those things, but you have to practice those simple questions that are given in your book, and I will suggest you few questions also when we finish this chapter, because this is one of the most important chapter. I told you that this is the very fundamental and very crucial uh, chapter in this course. So let me begin with this fugacity. We have seen that this fugacity here has been expressed as a fugacity of liquid at pressure P is given as its vapor pressure. See, this is vapor pressure. You just look at this one, last term. This is pi set. It's a vapor, but you know this pi set, this vapor pressure, this value of this pressure is different from this p. So it has been just approximated with this. Now with this approximation, if you multiply these factors, you get the correct fugacity of the liquid. So what are these factors? This is ratio of vapor fugacity to the saturation pressure. So this is your fugacity coefficient at saturation. Okay, now this is fugacity of liquid to fugacity vapor. This ratio is 1. This is identity, because it has been written like that so that it gets cancelled, and only this term left hand side is appears as a means in both sides, so that this equation can be written. So this is fugacity coefficient at saturation. Now here it is ratio of fugacity of liquid to vapor at saturation pressure. And what is this? Fugacity of the pure liquid at pressure P divided by fugacity at saturation. So this is ratio of two fugacities, and now you have multiplied with this pi. So if you look at this, so this pi set gets cancelled with this, fiv pi set gets cancelled with this one, and this cancelled with this one, and you just get this pip at pressure P means FIL at pressure P equal to FIL. So these two terms only remain, this and this, and remaining things get cancelled. So in a sense, you can look at this one. See 10.144, that fugacity of the liquid at pressure P is equal to, see this fugacity coefficient at saturation multiplied with the vapor pressure, saturation pressure at the. So this is approximation only, but because this pressure is different from the pressure here at which the fugacity of the liquid is being calculated, so you have to multiply with a correction factor which is which is there in exponential term. It is called Poynting correction factor or Poynting factor. This one, the term which is there inside the exponential. Okay, so this you can remember. So if you look at this, Fi of means fugacity of any liquid is equal to fugacity at saturation, but you have to means this is fugacity at saturation, phi I sat into pi sat. This is fugacity at saturation, but you have to correct this one for the pressure difference, because this pressure P and this saturation pressure P are different. So that has been given here. And how it is derived? It is derived by writing the Gibbs energy relation by two ways. One is, see this differential way of writing this one. So look at this one. So this is dg equal to vdp minus sdt at a constant temperature. You look at this and you integrate from the saturation, means you just calculate the Gibbs energy change when the material is brought from saturation state to the given pressure state. So this is a Gibbs energy difference. And another term is given here by this
if you look at this, so this is your integrated form of the writing Gibbs energy. G equal to tau T plus RT ln F. Now, if you make a difference of these two, so if you write G for GI and if you make write for GI set both, you are writing tau T plus RT ln F, then you make a difference and then you get RT equal to ln Fi, your Fi set. Okay, so for this you can write integrated form of the equation, and for this also you can write. Now if you make a difference, you will get this one. Now these two things are same, so you equate them and you get this expression. Now if you remove this ln term, then you have exponential one, and then you can write this. See, FIL PI set can be now means it can be written as a fugacity coefficient multiplied with pi set. So this becomes. So have you practiced this one? Can you write this expression? This is the calculation of the fugacity of the liquid. So here you can put a subscript L also, but it is not written here. So fugacity of a liquid is similar to its vapor pressure, but it is modified vapor pressure. So this is, see, this is vapor pressure, but this is modified. It has been modified with the fugacity coefficient and it has been modified by the Poynting condition. Fine. So this is it. So I'm leaving this one. So now you can practice this one because this water only temperature is 300 degrees Celsius and you have a pressure. So means it says that calculate the values of fugacity and fugacity coefficient from the data in a steam table. So you can easily use a steam table, and from the steam table, what do you get? You get saturation pressures, and you can look at the steam table, and then so what is there? So temperature is 300 degrees and pressures up to 10,000 kilopascal, means up to 100 bar, means you continuous many points you have to calculate. So it is not at a single point but many points. So but if you calculate at this one only single point, then also you can carry out this. So here what they have written that this is your Gibbs energy relation, general Gibbs energy relation, and this is your low pressure reference, means they have taken some reference. So for both the pressures it has been written. Now ln Fi means if you Gi minus, you make it Gi minus Gi star. So this can be written, and then so in this form it has been written, means at two different pressures the Gibbs energy means making a difference in Gibbs energy, this expression has been written. So fugacity at certain pressure divided by its fugacity at certain another pressure. So because the why it has been written like this means because this enthalpy and this entropy terms are available from the steam table. Okay, so this has been utilized here. So by looking at the steam table, these things have been. See, you can look at this one. So what they have is chosen that this reference state has been chosen as a 1 kilopascal, and at 1 kilopascal, so these values can be found. You can look at the steam table. Similarly, for many points up to the 10,000 kilopascals can be calculated for the fugacity. And so you look at this. This is at one particular pressure it has been written. So this ratio is fugacity to fugacity, reference fugacity. Now this is given. Now fugacity coefficient has been calculated. So any fugacity is equal to fugacity coefficient into its pressure. So this fugacity coefficient at saturation has been calculated, and this fugacity at saturation. And then volume is calculate, means directly can be read from the steam table. Molar volume means volume of 1 mole. Now at 10,000 kilopascal, this fugacity
the expression that was there, Poynting correction factor. See, this is fugacity coefficient, means in the Poynting correction factor, this is only equation 10.44. So this is fugacity coefficient into saturation pressure, exponent P minus Pi sat. So this is P, this is Pi sat, and multiplied with the volume divided by RT. This is your value R into T. So this becomes this. So at 10,000 kilopascal, you have fugacity only 6,789. Means the fugacity is different from the pressure. You can see. So this fugacity is different from pressure when the non-ideal situations prevail. So at low pressures, this fugacity and pressures are very much similar. But at the high pressures, this fugacity and pressures will be much different because the non-ideality factor will come. So as you know that at low pressures, the material at gases and fluid, they will behave like ideal one. So at high pressures, because it is 10,000 kilopascal, it's a huge pressure. So that at 10,000 kilopascal, the fugacity is only 6,789 for water. And at this, you can calculate the fugacity coefficient also, Fi over P. So this is your fugacity calculated, divided by its pressure. So this is pressure is this. So ratio is this 0.6. Otherwise, when the fluid behaves as an ideal one, so this fugacity coefficient is 1, almost 1. So it is much different from 1. So this example you can carry out. This is the plot they have made: continuous pressure and fugacity. Okay. So this is your saturation fugacity. Steam. So steam table is available. That's why this example is reasonable. Now fugacity and fugacity coefficient species in solution. So far we have learned the fugacity of the pure substance. Now we can extend our discussion to the material which is present inside the solution, in the gaseous mixture or in the liquid mixture. So we'll write our expression for the Gibbs energy in a similar way. So Gi, this is Gi, mu I means Gi here, means mu I is Gi bar in fact. So this is partial molar Gibbs energy. It can be written as tau T plus RT ln Fi cap. Now we are putting cap here. So the cap means the species in the solution. So the fugacity of the component I when it is present inside the mixture. So it is ideal gas expression. So now in case of ideal gas, if the mixture is ideal gas, then it will become RT ln Fi cap Ig, fugacity of a component in ideal gas mixture. So far it has been written like this, means without means notion of the ideality. In general, in any gaseous mixture which is non-ideal, you can write partial molar Gibbs energy equal to. How it is written? Equation 10.29. You can look at equation 10.29 first, then you can compare it. So equation 10.29, see this one. Gig equal to tau T plus RT ln, and this is nothing but this is for your ideal gas mixture. So this is your partial pressure. Now in case of partial pressure, I told you it should be the fugacity term. So this fugacity of component I inside the mixture. So if it is ideal gas mixture, then it is equal to its partial pressure. Otherwise it is just a fugacity term. So 10.29 has been rewritten there. So this is written for your ideal gas mixture. See, this is superscript Ig. Or you can look simply here. So in this case, this is a gaseous mixture, means component which is pure. Now if you make it in a mixture, so just put a bar here and tau T, let it remain like that. Only RT ln at the place of pressure P, you just put partial pressure. Now you will put partial pressure when it is ideal gas mixture. Now for non-ideal mixture, you will write Gi and you put it bar here, tau T plus RT ln
Fi cap. Fi cap. Cap, why you have to put cap? Because you are talking about the species which is present in mixture. So fugacity of the pure component is Fi, whereas the fugacity of component in the mixture is Fi cap. ऊपर कैप लगाएंगे आप, ये जो साइन है, तो कन्वेंशन है लिखने का. सो दैट हैज बीन रिटन. सो लेट मी शो यू. So fugacity of a component inside the mixture has been written. So हम लोग जो डिस्कशन पहले किए उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं मिक्सचर के लिए. यहाँ पर देखिए, तो अगर ये आइडियल गैस मिक्सचर होगा तो यहाँ पर ये पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, नहीं तो ये Fi कैप लिखेंगे. अब आप दोनों को कंपेयर करके लिख सकते हैं. तो देखिए, so Fi cap is the fugacity of species I in the solution. Solution means gaseous mixture here. So it is in general, in fact, this is correct for any gaseous mixture or in liquid mixture also. So, but little bit there will be a difference in writing this one. You will see that next I am coming to that. I'm just talking about the gaseous mixture, not the liquid mixtures. So Fi is the species in the solution replacing the partial pressure Yp. So now here partial pressure has been replaced by Fi cap. Because otherwise, if it is an ideal gas mixture, we will write simply partial pressure. So this definition of Fi does not make it a partial molar property, and it is therefore identified by a circumflex rather than by over R. So you should not write Fi bar. You should write Fi cap, because it is not partial molar property. Any property which is partial molar will be written with a over bar, but here it is cap, because you cannot talk about that property fugacity of 1 mole and fugacity of 2 mole. It has got no sense. Means it is not dependent on the how many moles you are taking. Okay, like temperature. So it is just a property. Fugacity means it is a pressure which is there applicable inside the gaseous mixture, something like that. I'll think about. So you should not write Fi bar. You can write for the other properties which are partial molar, but here the this fugacity is not your partial molar property, right? So we will write cap. So a direct application of this term indicates its potential utility. Equation 10.6 can give you the equality principle. Mu I means partial molar. Mu I means partial molar Gibbs energy. So you can prove this one, because the partial molar Gibbs energy are equal in all phases. You can write that the fugacity of component I in different phases should be equal to have a vapor to have a phase equilibrium condition. So this Fi cap alpha is equal to Fi cap beta equal to Fi cap this one. You can. So this is also a criteria. Means, so what is the criteria of phase equilibrium? Means Gibbs energies should be equal. Now suppose we are talking about pure component and its liquid and vapor fractions, then we will say that the Gibbs energies in vapor phase are equal to Gibbs energies in liquid phase for pure component. Now if the same component is present in a mixture, means there will be a liquid mixture and there will be a gaseous mixture, and there are number of components in each phase, then we have to say that its partial molar Gibbs energies are equal in all phases. And what do you mean by partial molar Gibbs energy? There its chemical potential is same. And in a similar sense, if you write in terms of fugacity, so you can also write that the fugacities of any component are equal in all phases. So we have taken component I, so its fugacities in phase alpha is equal to same fugacity in beta phase, and the fugacity of component I in any other phase pi. So equality of Gibbs energy is equality of partial molar Gibbs energy or chemical potential, or equality of fugacity. So these are all our criteria of the phase equilibrium. Okay, so this has been shown here.
Suppose this it is a liquid, so and vapor phase, then component I which is present in liquid phase, its fugacity will be equal to the component I fugacity which is there present in the vapor phase. And this liquid is a mixture and this vapor is also a mixture. So we are talking about now solution or mixtures. Any doubt in this? Please ask if you have any doubt. Vinay Maurya, have you got any doubt? Vinay Maurya, हम लोगों ने कैसे लिखा? हम Yes, हम sir. लोगों ने लिखा जो जो एक्सप्रेशन हम लोग लिख पा रहे हैं ना, वो समझ पा रहे हैं आप कैसे लिख रहे हैं? प्योर कंपाउंड के लिए Yes. लिख रहे हैं और फिर Yes, मिक्सचर sir. के लिए लिख रहे हैं। वही सिमिलर डीजी इक्वल टू वीडीपी माइनस एसडीटी, यही एक्सप्रेशन बेसिक है। उसको हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिख दिया तो डीजी इक्वल टू वीडीपी बन गया। अब उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिख दिया, कभी कभी डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया, सब उसी से निकल के आ रहा है। कोई नया रिलेशन नहीं बता रहे हैं, केवल हम ये बता रहे हैं प्योर कंपोनेंट लेंगे, मैंने आप किसी केमिकल स्पीसीज को प्योर मान के काम कर रहे हैं या वो केमिकल स्पीसीज किसी गैसियस मिक्सचर में है, तो गैसियस मिक्सचर के केस में हम लोग ओवर बार लगा देंगे उसके ऊपर और फ्यूगासिटी के को कैप के रूप में लिख देंगे और हम लोग पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी की बात करने लगते हैं। लेकिन फ्यूगासिटी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रेशर जैसी कोई चीज़ है और उसको अगर आप सही तरीके से देखें तो फ्यूगासिटी इज इक्वल टू फ्यूगासिटी कोफिशिएंट इनटू प्रेशर। तो ये फ्यूगासिटी प्रेशर की जगह क्यों आया? क्योंकि वो नॉन आइडियल बिहेव करता है। जो प्रेशर्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे वहाँ पर। फ्यूगासिटी माने एस्केपिंग टेंडेंसी, फ्यूगासिटी का जो लिटरल मीनिंग है वो एस्केपिंग टेंडेंसी है, वो टर्म लिखेंगे आप। थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर से आपकी इक्वेशंस ठीक नहीं बनती हैं, तो फ्यूगासिटी टर्म लेना पड़ेगा। दिस ये फ्यूगासिटी जो है प्रेशर से अधिक भी हो सकती है और प्रेशर से कम हो सकती है। फ्यूगासिटी कोफिशिएंट में बी ग्रेटर देन 1 और इट में बी लेस देन 1। ठीक है, तो ये रिपल्सन ज़्यादा है प्रभावी है या अट्रैक्शन ज़्यादा है डोमिनेटिंग है, इस पर डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के बीच। तो श्रद्धा, आर यू देयर? कोई डाउट पूछिए श्रद्धा। Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. हाँ, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो एक्सप्रेशंस मैं लिखता चला जा रहा हूँ या दिखाता चला जा रहा हूँ, ये तो राजन कुमार बताइए, आपको कोई डाउट? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अपनी नो सर। नोटबुक यस सर। करिए। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप नोटबुक से नोटबुक में आप हम समय दे देते हैं आपको, आप नोटबुक में एक एक करके वो लिखते जाइए सारे एक्सप्रेशन। हालांकि बुक में आपको तो लिखे हुए मिलेंगे ही, लेकिन आप यस सर, आई एम राइटिंग ऑन माय कॉपी। हाँ, यू हैव टू राइट आल्सो, मींस अनटिल अनलेस यू राइट, आई टेल यू, यू आर डिसेप्टिंग योरसेल्फ। आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि इम्तिहान मुझे नहीं देना है, इम्तिहान तो आपको देना है। उसके हिसाब से आप तैयारी बनाए रखिए। क्वेश्चन पेपर मैं सिंपल ही बनाऊंगा इस बार, लेकिन आपको फिर भी अपने फंडामेंटल्स तो मजबूत रखने पड़ेंगे, उतना तो आप कर पाए। इतना सहयोग मैं कर सकता हूं कि आपको क्वेश्चन पेपर सिंपल दूंगा, ज़्यादा कठिन नहीं होगा। न्यूमेरिकल्स भी बहुत लिमिटेड और आपको मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा ज़्यादा, मगर आपको कुछ फंडामेंटल्स आने चाहिए ताकि आप ये तो कहें कि हमने बीटेक का एग्जाम पास किया है उससे रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। इतना स्टैंडर्ड तो आपको स्वयं बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट आप पढ़ा रहा हूँ और अगर मैं रेगुलर वे में आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपसे ये चाहूँगा कि उतना तो आप करें जो आपको कम से कम क्लास में हमने डिस्कस किया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी कोई समस्या हो, कोई भी आपके अंदर दिमाग में सवाल आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया मैंने बताया, तो कोई भी स्पीसीज जो है अगर कई फेजेज में है, माने आप लिक्विड फेज ले लीजिए, उसमें कई मिक्स कंपोनेंट हो और वही लिक्विड जो है वो अपनी वेपर के साथ, अपनी गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है। वो कोई भी लिक्विड आप ले लीजिए, मिक्सचर ले लीजिए, एथिल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर ले लीजिए, अगर आप इसको बंद कंटेनर में रख देंगे तो उसके ऊपर जो वेपर बनेगी उसमें भी एथिल अल्कोहल और वाटर होगा। अब वो बहुत देर तक आप रखे रहेंगे तो वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। क्लोज्ड कंटेनर की बात कर रहा हूँ, बंद। तो जब ये वेपर उस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो कहा जाएगा कि ये वेपर सैचुरेटेड है, और सिमिलरली लिक्विड को भी बोला जाएगा ये लिक्विड सैचुरेटेड है, माने एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ विल बिकम इन सैचुरेशन स्टेट। ठीक है,
सेचुरेशन का मतलब यहाँ पर बॉइलिंग से नहीं है, लेकिन ये मतलब है कि गिवन प्रेशर पर ये मैक्सिमम इतना वेपर प्रेशर उसके अंदर है। माने आप अगर कंप्लीटली वैक्यूम करके आप इसको करें, तो अगर आप कोई भी एयर ना हो बॉटल के अंदर, सारी एयर को निकाल दीजिए, वेपर से उसको पहले फिलअप कर दीजिए, फिर ढक्कन बंद कर दीजिए। आप देखेंगे, आप अभी अभी आप एक्सपेरिमेंट एक करिए, एक बॉटल में बॉइलिंग वाटर लीजिए और उसके वेपर्स को रिप्लेस करने दीजिए, जो अंदर की जो हवा भरी है बॉटल में वो डिस्प्लेस कर देगी उसकी वेपर। फिर इसके बाद आप ढक्कन लगा दीजिए, फिर उसको ठंडा होने दीजिए, लेट इट कम टू द रूम टेम्परेचर। आप देखेंगे कि उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। माने आप जब ढक्कन खोलेंगे तो तेजी से हवा अंदर जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्लेस कर दिया, उसको पूरी तरीके से हटा दिया। जब वेपर कंडेंस हुई तो उसने अब जगह छोड़ दी और वहां पर वैक्यूम बन गया। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन कुछ इसी तरीके की बनाते हैं। सैचुरेशन, तो जब भी कोई वेपर अपने लिक्विड के साथ बहुत देर तक संपर्क में रहेगी तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो किसी भी कंपोनेंट की बात करें आप, तो वो जैसे वाटर की बात करें या, तो वो जो लिक्विड फेज है उसमें उसकी जो फ्यूगासिटी और जो उसका वेपर फेज है उसमें फ्यूगासिटी, एस्केपिंग टेंडेंसी बराबर बराबर रहेगी, तभी वो इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। इसको बहुत ही फिजिकल मीनिंग वे में आप समझ सकते हैं। एस्केपिंग टेंडेंसी, भागने की क्षमता, माने वहां से निकलने की जो उसकी आदत है, जो उसको प्रेशराइज करने की आदत है। प्रेशर क्या है? मन दीवार के ऊपर जब मॉलिक्यूल टकराते हैं तो एस्केप करने चाहते हैं उस कंटेनर के अंदर से, माने वो एस्केपिंग टेंडेंसी बोला गया है। तो यहाँ पर एक फुट नोट में बताया गया है कि फ्यूगासिटी का जो लिटरल मीनिंग है उसको एस्केपिंग टेंडेंसी से डिफाइन किया गया है। अगर आप इसको फुट नोट को पढ़ें तो देखिए, द वर्ड फ्यूगासिटी इज बेस्ड ऑन लैटिन रूट मीनिंग टू फ्ली और एस्केप, आल्सो द बेसिस ऑफ द वर्ड फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव समझते हैं आप? भगोड़ा, हाँ, भाग जाता है जो, फ्यूजिटिव। Thus, the fugacity has been interpreted to mean escaping tendency. यहाँ पर आप पढ़ते हैं, when the escaping tendency is the same for the two phases, they are in equilibrium. When the escaping tendency of a species is higher in one phase than another, that species will tend to transfer to the phase where its fugacity is lower. बिल्कुल सीधी सी बात है, सिंपल बात है। हायर टू लोअर फ्यूगासिटी की तरफ मूवमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो अगर मोर एंड मोर वेपर बन रही है, लिक्विड छोड़ करके कोई कंपोनेंट जा रहा है, इसका मतलब उसकी फ्यूगासिटी लिक्विड फेज में ज्यादा है, वेपर फेज में कम है। तो जब तब तक वो चलता जाएगा जब तक दोनों तरफ उसकी फ्यूगासिटी इक्वल नहीं हो जाएगी। तो ये इक्विलिब्रियम की जो कॉन्सेप्ट शुरू में बताई गई थी, इक्विलिब्रियम इज ए डायनेमिक स्टेट। जितना आप जानते हैं कि जैसे कोई लिक्विड अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है तो लिक्विड से वेपर लगातार बनती भी रहती है और वेपर से लगातार लिक्विड में कंडेंसेशन भी होता रहता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर तो मॉलिक्यूल अपना फेज चेंज करते रहते हैं, बट देयर इज नो नेट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द लिक्विड और इन द अमाउंट ऑफ द वेपर व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम। जितना लिक्विड वेपर में वेपराइज होता है उतना ही वेपर लिक्विड में कंडेंस हो जाता है। ऐसा ये मॉलिक्यूलर लेवल पर माना गया है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। तो हम लोग देख पाए कि ये फ्यूगासिटी का टर्म जो आया, तो फ्यूगासिटी इन ऑल फेजेज इज इक्वल। ऐसा मतलब नहीं है कि इस कंपोनेंट आई की फ्यूगासिटी कंपोनेंट जे के बराबर होगी, के बराबर, ऐसा नहीं है। कंपोनेंट आई की ही फ्यूगासिटी जो है डिफरेंट फेजेज में बराबर होगी। बात को समझने की कोशिश करिए। अगर हम जे के लिए लिखें, कंपोनेंट जे के लिए, तो एफ जे अल्फा कैप इज इक्वल टू एफ जे बीटा कैप इज इक्वल टू एफ जे इन द पाइप फेज। तो ये जे के लिए, इसीलिए अलग अलग कंपोनेंट्स की अलग अलग फ्यूगासिटी होगी, लेकिन उनकी जो फ्यूगासिटी डिफरेंट फेजेज में है। ये सारे फेजेज इक्विलिब्रियम में, अल्फा बीटा गामा, ये सब आपस में इक्विलिब्रियम में, उन सब में उनकी फ्यूगासिटी इक्वल होगी। तो ये इक्वलिटी का समझ लीजिए। तो अब हम लोग आते हैं रेसिडुअल प्रॉपर्टी में, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि एनी प्रॉपर्टी, रियल प्रॉपर्टी माइनस आइडियल गैस प्रॉपर्टी विल बिकम रेसिडुअल। तो एम आर इक्वल टू एम माइनस एम आई जी, ये आप जानते ही हैं। तो रेसिडुअल के टर्म में अगर आप लिखें इसको, तो अगर एन नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये लिखा हुआ है रेसिडुअल प्रॉपर्टी। तो ये देखिए पार्शियल मोलर रेसिडुअल प्रॉपर्टी के तौर पर लिखा है। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी है
उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, रेजिडुअल निकालिए, फिर उसको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मोल से डिफ्रेंशिएट करिए, कीपिंग टेम्परेचर एंड अदर मोल्स कांस्टेंट। तो एक तरीके का ये पार्शियल के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो पार्शियल मोलर रेजिडुअल कंपोनेंट, ये देखिए MIR बार लिख दिया गया। तो हम लोग रेजिडुअल प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, और रेजिडुअल प्रॉपर्टी में भी हम लोग फिर से पार्शियल प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। रेजिडुअल का मतलब है, ये देखिए प्योर कंपोनेंट के लिए का। अब इसको सपोज करिए मिक्सचर में हो तो आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ये जो है मोलर प्रॉपर्टी पार्शियल होनी चाहिए, और यहाँ पर ये जो आइडियल गैस की प्रॉपर्टी, ये भी पार्शियल गैस प्रॉपर्टी लगा दी जाए, तो फिर ये पार्शियल बन जाएगा। तो वही लिखा गया है, तो इसके एनालॉगस बिल्कुल इक्वल लिखा गया है, MI बार मीन्स। तो ये अब हम आइडियल और रियल सोल्यूशन के बीच के प्रॉपर्टी का डिफरेंस देख रहे हैं। व्हाट इज दिस? MI बार रेजिडुअल का मतलब है कि MI प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन माइनस प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन व्हेन इट बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा MI R बार, ये लिखा गया। तो अगर M प्रॉपर्टी को G मान लिया जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये देखिए पार्शियल मोलर गिब्स एनर्जी रेजिडुअल फॉर्म में लिखी गई। तो ये क्या है? GI बार केमिकल पोटेंशियल है, प्योर कंपोनेंट का यहाँ पर लिखा गया। सॉरी, आई एम सॉरी, प्योर नहीं है, कंपोनेंट I का मिक्सचर के अंदर लिखा गया है, और यहाँ पर ये कंपोनेंट I का आइडियल गैस स्टेट में लिखा गया। तो ये रियल है सोल्यूशन और मिक्सचर, और ये आइडियल गैस है। तो रियल और आइडियल का जो डिफरेंस होता है वही तो रेजिडुअल होता है, तो ये रेजिडुअल लिखा गया। तो ये गिब्स एनर्जी के, तो इसी को एनालॉगस फॉर्म में लिखा गया। अब देखिए इसको, इसी केमिकल पोटेंशियल को लिखा गया μI माइनस μIIG। इसको रेजिडुअल को ऐसे लिखा जाएगा ना, क्योंकि म्यू का मतलब होता है GI बार, ठीक है। तो इसको लिख दिया गया, दैट इज इक्वल टू RT FI कैप ओवर, अब ये फ्यूगासिटी डिवाइडेड फ्यूगासिटी ऑफ द रियल गैस मिक्सचर नॉन आइडियल गैस मिक्सचर डिवाइडेड बाय फ्यूगासिटी इन द आइडियल गैस मिक्सचर, और फ्यूगासिटी ऑफ एनी कंपोनेंट इन आइडियल गैस मिक्सचर इज नथिंग बट इट्स पार्शियल प्रेशर। तो ये देखिए YI इंटू पी लिखा है। YI इंटू पी क्या चीज है? पार्शियल प्रेशर है। मोल फ्रैक्शन टाइम्स टोटल प्रेशर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो एक जनरल एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं हमेशा, G1 माइनस G2 इज इक्वल टू RT ln F1 ओवर F2 कैप। मीन्स अगर मिक्सचर की बात करें F1 कैप ओवर F2 कैप, तो इन रेशियो ऑफ फ्यूगासिटी बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन वैसे ही है, पहले जैसे हम लोगों ने रेजिडुअल GR के लिए लिखा था RT ln FI ओवर P, F ओवर P रेशियो ऑफ फ्यूगा। तो ये जो हम लोग फ्यूगासिटी कोफिशिएंट जब हम लोगों ने डिफाइन किया था, इफ यू रिमेम्बर, बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये आप लिख सकते हैं। क्या डिफरेंस हम लोग क्या लिख रहे हैं? हम लोग रेजिडुअल लिख रहे हैं। पार्शियल मोलर गिब्स एनर्जी ऑफ द कंपोनेंट I इन रियल गैस मिक्सचर माइनस पार्शियल मोलर गिब्स एनर्जी ऑफ द कंपोनेंट I इन आइडियल गैस मिक्सचर। सो दिस विल बिकम GI बार, GI R बार, GI R बार, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड। और इसको जब आप लिखते हैं टाउ टी प्लस RT ln F, इसको भी टाउ टी प्लस RT ln F, तो इसको आप डिफरेंस करके RT ln ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो फ्यूगासिटी टर्म है वो आइडियल गैस मिक्सचर के लिए है पार्शियल मोलर सॉरी पार्शियल प्रॉपर्टी, so इसलिए यहाँ पर YI इंटू पी आ गया। ये आप इक्वेशन देख सकते हैं 10.29 और 10.46 इक्वेशन वहाँ पर आपको दिख जाएगा। 10.29 देखिए, 10.29 ये देखिए, ये लिखा गया है आइडियल गैस मिक्सचर के लिए, इसको आप लिख दीजिए, और आप रियल के लिए लिखिए जो अभी आपने लिखा है यहाँ पर। रियल के लिए आप FI कैप, इसको FI कैप के रूप में लिखना है। कहाँ पर लिखा गया है? ये 10.41 में अभी दिखाता हूँ। देखिए ये लिखा गया 46। इन दोनों का ही तो डिफरेंस है, इन इक्वेशन 10.46 और ये पिछला इक्वेशन
जो लिखा गया है 10.29, इन दोनों के इक्वेशंस का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, तो उससे आप ये लिख सकते हैं। तो अब ऐसा जब आपने लिखा तो ये आ गया आपका, तो ये जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, फ्यूगासिटी ऑफ ए कंपोनेंट आई इन रियल गैस नॉन आइडियल गैस मिक्सर डिवाइडेड बाय इट्स फ्यूगासिटी इन आइडियल गैस मिक्सर। तो ये एक रेशियो है फ्यूगासिटी का, तो इसको भी आप फ्यूगासिटी कोफिशिएंट कहेंगे। तो ये देखिए आ गया जी आई बार, ये बन गया जी आई आर बार आर टी एल एन, इसको पूरे को बोला गया है फ्यूगासिटी ऑफ ए कंपोनेंट आई, फ्यूगासिटी कोफिशिएंट ऑफ द कंपोनेंट आई इन मिक्सचर। जैसे हमने प्योर के लिए डिफाइन किया था फाई आई वाज एफ ओवर पी। अब यहाँ पर फाई आई इक्वल टू क्या है, एफ आई कैप ओवर पी। पी मीन्स नॉट इट्स पार्शियल प्रेशर, नॉट इट प्रेशर बट पार्शियल प्रेशर। तो ये पार्शियल पी की जगह पार्शियल प्रेशर आएगा, क्योंकि प्योर कंपोनेंट में तो उसके प्रेशर से आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आइडियल गैस मिक्सचर है तो उसमें पार्शियल प्रेशर से डिवाइड करेंगे। तो ये रेशियो दिखाया गया है, मैंने कि ये आइडियल गैस मिक्सचर और रियल गैस मिक्सचर का जो डिफरेंस है वो उसका जो रेशियो है वो दिखा रहा है यहाँ पर। तो आप ये याद रख सकते हैं जी आई बार आर इक्वल टू आर टी एल एन फाई आई कैप, और ये डेफिनेशन दी गई फाई आई कैप की एफ आई ओवर वाई आई इंटू पी, मीन इट इज ए रेशियो ऑफ फ्यूगासिटी ऑफ ए कंपोनेंट इन नॉन आइडियल गैस मिक्सचर डिवाइडेड बाय इट्स फ्यूगासिटी इन ideal gas mixture, and in the ideal gas mixture its fugacity is nothing but yi into p। ये आपकी डेफिनेशन बन गई। तो देखिए फ्यूगासिटी इन आइडियल गैस मिक्सचर क्या होनी चाहिए, पार्शियल प्रेशर, देखिए yi into p 10.53। और रेजिडुअल गिब्स एनर्जी और रेजिडुअल केमिकल पोटेंशियल जो बात करेंगे तो आप कहेंगे कि अगर ये आइडियल गैस मिक्सचर है तो वो 0 हो जाता है। फ्यूगासिटी कोफिशिएंट इन आइडियल गैस मिक्सचर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऊपर भी एफ आई, तो एफ आई कैप ओवर एफ आई जी, मीन्स इसको आप जनरल फॉर्म में ये याद रख सकते हैं, एफ आई कैप ओवर एफ आई जी, मानी फ्यूगासिटी ऑफ द कंपोनेंट इन आइडियल गैस मिक्सचर। बस ऐसे आप रेशियो इन दोनों माने रियल टू आइडियल का रेशियो है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब इसी को लिख दिया जाए, अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिलेशन हम लोग लिखना चाहें एनालॉगस वे में तो उसको भी लिखा जा सकता है। देखिए आप ये जानते ही हैं ये एक्सप्रेशन जी ओवर आर टी इक्वल टू डी एन जी ओवर आर टी माइनस जी ओवर आर टी स्क्वायर डी टी, ये आप पहले लिख चुके हैं। अब यहीं पर आप पार्शियल मोलर की बात करने लग जाएं, यहाँ पर बार लगा दीजिए तो देखिए ये आपका बन जाता है। तो ये तो यहाँ पर जो है सो ये पहले देख लेते हैं कि कैसे लिखा है इन्होंने। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिलेशन 10.2 इज पुट इनटू अल्टरनेटिव फॉर्म थ्रू द मैथमेटिकल आइडेंटिटी, सो आल्सो यूज्ड टू जनरेट 6.37 को जहाँ पर हमने जनरेट किया था वो उस जगह भी लिखा गया था। तो ये आ गया था, दिस एक्सप्रेशन हैज ऑलरेडी बीन रिटन डी एन जी ओवर आर टी माइनस एन जी ओवर आर टी स्क्वायर डी टी, और वो डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी से आप ये लिखते आए। तो आपने ये भी एक्सप्रेशन पहले देखा है 10.2 में ये लिखा एलिमिनेट करके डी एन जी इज एलिमिनेटेड बाई इक्वेशन 10.2। आप अगर इसमें से एलिमिनेट करें डी एन जी को तो जी इज रिप्लेस्ड बाई इट्स डेफिनेशन, जी की डेफिनेशन लिख दीजिए जी यहाँ पर, और डी जी की भी डेफिनेशन आप इसमें रखिए तो एच माइनस टी एस जी की जगह लिख सकते हैं आप। तो ये आप लिखा गया, तो ये इस टाइप का एक्सप्रेशन तो पहले भी लिख चुके हैं हम लोग, आपको याद होगा चैप्टर 6 में हम लोगों ने लिखा था डी एन जी ओवर आर टी इज इक्वल टू एन वी डी पी ओवर आर टी माइनस एन एच ओवर आर टी डी टी स्क्वायर। और ये तीसरा टर्म केवल इस यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग वेरिएबल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पहले नहीं था, अब इस जगह आया है। तो आपने ये मैंने फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिलेशन लिख दिया है आपने, नॉट फॉर द प्योर मिक्सचर बट फॉर द मिक्सचर इन नॉट फॉर द प्योर कंपोनेंट बट फॉर द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द गैसियस मिक्सचर। तो ये मिक्सचर
के अंदर की बात लिखी गई है कि ये फंडामेंटल रिलेशन है, तो इसीलिए इसका आ गया फंडामेंटल रेजिडुअल प्रॉपर्टी। रेजिडुअल प्रॉपर्टी का मतलब हम लोग उसको आइडियल गैस मिक्सचर से कंपेयर करते हुए लिखेंगे, तो अभी तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिलेशन लिखा गया। अब रेजिडुअल के फॉर्म, इसी को रेजिडुअल आप बना सकते हैं। तो आगे देखिए, इसमें आप आइडियल गैस के लिए लिखेंगे तो आप यही रिलेशन फिर रिपीट कर दीजिए। ये 10.54 को एक ये रियल गैस मिक्सचर के लिए लिखा गया है, और इसी को आप आइडियल गैस मिक्सचर के लिए लिख दीजिए, तो सुपर स्क्रिप्ट केवल IG ऊपर लगा दीजिए आप, नथिंग एल्स। और फिर आप डिफरेंस कर दीजिए, तो डिफरेंस करने पर ये रेजिडुअल, तो ये रेजिडुअल गैस DNGR ओवर RT इक्वल टू VR ओवर RT माइनस HR RT स्क्वायर प्लस सिग्मा GIR ओवर RT DM। ये आप याद रखिए। तो देखिए, हम लोग इसका उपयोग करेंगे, GI ओवर R अभी हम लोग निकाल चुके हैं और उसको हम लोग लिखेंगे। तो ये GIR ओवर RT जो है ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, ln phi i कैप, इसको हम लोग कहते हैं ln phi i कैप, अभी अभी हम लोगों ने देखा, तो वो रिलेशन यहाँ पर लिख दिया गया। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल रेजिडुअल प्रॉपर्टी रिलेशन। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पहला टर्म है VR ओवर RT, ये क्या है, ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल है GR ओवर RT का विद रिस्पेक्ट टू P, और ये दूसरा वाला क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू T है, पार्शियल डिफरेंशियल कीपिंग द कंपोजिशन कांस्टेंट, X इज कांस्टेंट ये। तो ये आप कैलकुलस की मदद से ये भी लिख सकते हैं। तो और इस तरीके के रिलेशन तो पहले भी हम लोग लिखे हैं। V का मतलब हम लोग लिखते आए हैं डेवर G ओवर डेवर P कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, तो VR ओवर RT को इस तरीके से लिख दिया गया। इसी तरह H का मतलब है कि गिब्स एनर्जी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू T। तो यहाँ पर ये देखिए, ये T, ये जो कि T स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पर एक T इधर भी आया। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए लिखने के लिए, सिंपली लिखा गया। तो 10.58 तक हम लोग समझ गए। और ln phi i कैप का मतलब है, अब देखिए बाकी जो बचा है क्या, ये ln phi i कैप, ये क्या होना चाहिए, जब हमने इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, तो ये तीसरा डिफरेंशियल भी तो पार्शियल के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये देखिए पार्शियल के फॉर्म में ये तीसरा आया ln phi i कैप। तो रेजिडुअल गिब्स एनर्जी ओवर RT डिवाइडेड बाई डेवर Ni कीपिंग टेम्परेचर प्रेशर एन। सो देखिए, ये एक तरीके का क्या बन रहा है, पार्शियल मोलर रेजिडुअल गिब्स एनर्जी। तो ये एक पार्शियल प्रॉपर्टी है। तो ln phi i कैप इज ए पार्शियल प्रॉपर्टी। लॉगरिथम ऑफ द फ्यूगासिटी कोफिशिएंट ऑफ स्पेशल इज ए पार्शियल प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू GR ओवर RT। क्यों पार्शियल प्रॉपर्टी है, क्योंकि एनी प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय चेंज इन एनी प्रॉपर्टी divided by change in the moles keeping temperature pressure constant and other compositions constant, other component, तो उसको पार्शियल बोलते हैं। ये डेफिनेशन है पार्शियल। तो ln phi i कैप इज पार्शियल। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया। अब आप ये 10.6 को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज किया है, और आप यहीं स्टॉप करेंगे हम लोग।